Hello student, welcome to Bharatiya Boarding School. I am your English teacher, Mrs. Asmita Verma. Okay, today we take a new topic regarding to English grammar. Okay, today's our topic is type of noun. Okay, we already know about the part of speech. Okay, all the part of speech. So today I am going to explain you the types of noun. Okay, Satnarayan, what do you mean by noun? A noun is the name of word which is person, place, animal, or thing. Yeah, baby, what do you mean by noun? Good morning, ma'am. Good morning. Noun means name of any place, thing, or person. Okay. Now I am going to share my screen. Now we discuss types of noun. Okay. Okay, ma'am. Okay. You can see my screen, all of you. आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? Okay, types of noun. There is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 types of noun. And how many types of noun? 10. Okay? 10 types Common of noun, proper noun, abstract noun, concrete noun, countable noun. okay. Common noun, proper noun, abstract noun, concrete noun, Nouns, countable noun, countable noun, uncountable uncountable noun, compound noun, noun, collective noun, singular noun. noun, plural noun. Okay, one by one, we discuss about all the nouns. Okay, first we take a common noun. Okay, ma'am. Non-specific people, place, thing, or ideas. Example, man, city, reason. Common noun means the name which is used normally. Okay, not specify the special person. Like I say, boys. So you don't, there in this class, there are two boys. Okay, you understand? Teacher is talking about which boy? Yes, ma'am. No, I said, okay, all of you mute your mic. All of you mute your mic and on your camera, Satnarayan, Himanshu. Ma'am, my camera is Himanshu, on your camera. Okay. Common noun means when I said boys of boys, give me the answer. Do you don't understand? Miss is talking about which boy? You understand? Because there is two boys in this class. So it is common. Okay, जब मैंने boy बोला, girl बोला, school बोला, teacher बोला, country बोला, city बोला, तो ये common है. हमें सिर्फ पता नहीं चल रहा हम लोग किस चीज का नाम ले रहे हैं. सिटी मैंने बोला मैं वो सिटी में रहती हूँ, तो तुम लोग समझ सकते हो मैं कौन सी सिटी में रहती हूँ? नहीं, क्योंकि मैंने सिर्फ सिटी का नाम बोला, तो वो कॉमन, जो भी चीज कॉमन नाम में, जैसे मैन, तो मैन में क्या आ जाएंगे? सारे मैन. सिटी मीन्स ऑल सिटी, रीजन मीन्स ऑल रिलीजन, एक्सेट्रा. इट इज common noun. When what do you mean by proper noun? Specify people, place and thing, like Alberstein and London. अगर मैं आपको बोलूं मैं बॉम्बे सिटी में रहती हूँ, तो आप लोगों को समझेगा कि मैं कौन सी सिटी की बात कर रही हूँ? yes, ma'am. मैंने प्रॉपरली नाम बताया. अगर मैं बोलूंगी मैं वो सिटी में रहती हूँ, तो यू कैन अंडरस्टैंड कौन सी सिटी में रहती हूँ मैं? No, ma'am. नो मैम, क्योंकि वो कॉमन है. सिटी कॉमन है, कोई भी सिटी हो सकती है. ओके, जैसे कंट्री का नाम मैंने लिया, जैसे मैंने बोला वो कंट्री बहुत ब्यूटीफुल है. दिस कंट्री इज वेरी ब्यूटीफुल. सो यू अंडरस्टैंड आई एम टॉकिंग अबाउट विच कंट्री? No, ma'am. When I take the name, the Singapore country is very beautiful, then you know. Okay,
for which country I am talking about. Okay, so you know the difference between common noun and proper noun? Yes or Yes. no? Yes. Okay, then can you give me the definition of common noun and proper noun? Yes, ma'am. Common noun give us common and general person, place, or thing. Proper noun is a particular person, place, thing. Yes. Okay, baby. Tell me the difference between common noun and proper noun. Common noun. Can I give example? Okay. Country. Okay, there is a lot of noise. You all can mute your mic. You all have to mute Okay, your ma'am. mic. Okay. हाँ. Now, common noun means कोई भी चीज का नाम लेना जो कॉमन हो. और प्रॉपर मतलब किसी चीज का भी प्रॉपरली नाम लेना, मतलब एग्जैक्ट वही चीज का नाम लेना. जैसे मैंने बोला सत्यनारायण ऑफ योर कैमरा, तो यू ऑल नो द सत्यनारायण. इफ आई सेड boys off your camera, you don't know I am talking about which boy. ठीक है, तो कॉमन मीन्स जो सबके लिए यूज हो. बॉय बॉय बोलते ही हमारे जो हमारा जो फेस है हम इमेजिन कर लेते हैं. बॉय मीन्स विच स्ट्रक्चर, गर्ल्स मीन्स विच स्ट्रक्चर. ओके, स्कूल मतलब मैंने स्कूल बोला तो कोई भी स्कूल, लेकिन मैंने जब आदर्श विद्या निकेतन बोला तो ये एक पर्टिकुलर स्कूल का नाम है. ओके, तो कॉमन Yes, मतलब okay, ma'am. जैसे कि हम नाम लेते हैं रिलीजन, कंट्री, सिटी, मैन, वुमेन, स्कूल, टीचर, तो ये सब कॉमन नेम है. लेकिन जब मैंने प्रॉपरली नाम लिया अस्मिता टीचर, बॉम्बे सिटी, ओके, हिंदू रिलीजन, देन एलिस्ट्री लंदन कंट्री, ऐसा, तो हमें समझ में आएगा प्रॉपरली किस चीज का नाम लिया. देन अब्स्ट्रैक्ट नाउन, समथिंग दैट यू कैन नॉट बी रिसीव विथ योर 5 सेंसेस. Which are our 5 senses? 5 Yes, ma'am. sensory और कौन से 5 senses हमारे? Ma'am. Yes, ma'am. Tongue, Very good. nose, a skin, Yes. ear, and Eye. eye. Okay, these are our 5 sensory organ. Abstract noun वो नाउन है जिसमें हम अपने 5 sensory organ से वो चीजों का नहीं पता लगा सकते, मतलब उसको हम टच नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते. ठीक है, वो abstract noun है जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं. जैसे बिलीव, बिलीव आप देख सकते हो क्या? बिलीव मतलब भरोसा, किसी का भरोसा आपके ऊपर कितना है वो आप देख सकते हो. Ma'am, my video is Ma'am, my video is on. ओके ओके, बिलीव, हाँ बिलीव हम नहीं देख सकते, हम देख सकते हैं बिलीव कितना है किसी के ऊपर. मेरा वीडियो, मैम मेरा वीडियो ऑन है. हाँ, आपका कैमरा ऑन है. मैम मैम हिमांशु भैया चैट में लिख रहे हैं वीडियो ऑन नहीं है. हिमांशु, मैम वो कुछ देर पहले नहीं था, उसकी ये लिखे थे कि वीडियो ऑन कर लो. मैम बोली है. ठीक है, ओके, ठीक है. तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब बिलीव, बिलीव मतलब भरोसा, हम किसी का भरोसा देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि कितना भरोसा है उसका, 1 है भरोसा, 2 है. नहीं, भरोसा हम देख नहीं सकते, सिर्फ अंदाजा लगा सकते. ठीक है, जैसे लव, प्यार, आप अपनी मम्मी को ऐसे बोलते हो मम्मी मैं आपको 5 लव करता हूँ, 7 लव करता हूँ, नहीं, हम क्या बोलते हैं बहुत सारा प्यार करते, क्योंकि वो लव हम दिखा नहीं सकते, वो हमारे अंदर होता है. प्राइड, प्राइड किसी के ऊपर गर्व फील होता है, तो हम वो उसको बता नहीं सकते, सिर्फ बोल के बता सकते. उसको नंबर्स में काउंट कर सकते हैं क्या? नो मैम. नो मैम. वेट अ मिनट. हाँ, ओके मैम.
ओके, तो हम लोग ये सारी चीजें जो हम मतलब अपने सेंसरी ऑर्गन से, जैसे हैप्पीनेस, ऑल ऑफ यू म्यूट योर माइक, हिमांशु बेबी, ओके, जैसे कि हैप्पीनेस है, सत्यनारायण आपको ऑन करना है कैमरा, म्यूट करना है माइक, ओके ओके, जैसे कि हैप्पीनेस है, हमारी खुशी है, तो वो खुशी हम लोग टच कर सकते हैं क्या, सुन सकते हैं क्या, फील कर सकते हैं? नहीं, सिर्फ महसूस कर सकते, फील कर सकते हैं। फील कर सकते हैं मतलब, लेकिन ऐसा स्किन में टच करके फील करके बता सकते हैं कि कितनी खुशी है? नो नहीं, मैम। लेकिन कोई गरम गरम या ठंडी चीज है तो इसको हाथ पे रखा तो हम फील कर सकते हैं गरम है कि ठंडा, लेकिन खुशी को ऐसा महसूस कर सकते हैं, अंदर फील कर सकते हैं, पर ये टच नहीं करके फील कर सकते। यस, यस अगर मैम। सत्यनारायण बोलेगा मैम टुडे आई एम वेरी हैप्पी, तो मैं इसको टच करके बता सकती हूँ तो क्या सत्यनारायण कितना खुश है? नो मैम। इसमें क्या, अब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स हमारी भावनाएं, ओके, जो हम फीलिंग्स है हमारी, वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिसे हम आंखों से देख नहीं सकते। खुशी देख सकते हैं क्या, कितनी खुशी है? बस वाटर है एक बॉटल में तो हम पानी को देख सकते हैं कि ये बॉटल के अंदर कितना वाटर है, बट खुशी कितनी है हमारे अंदर वो देख सकते हैं? नहीं। तो नो मैम। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब इजिली इतना ध्यान में रखो कि हमारी क्या भावनाएं, ठीक है, ओके फीलिंग, मैम। जैसे इसके अंदर क्या आ जाएगा, हैप्पीनेस आ जाएगा, क्राइनेस आ जाएगा। अभी आप रो रहे हो तो आप काउंट कर सकते हो कितने टाइम रो रहे हो, आप क्राई कर रहे हो? नो मैम। नहीं। आप कितने खुश हो, आप अपनी मम्मी से कितना लव करते हो, आपके पापा को आपके ऊपर कितना प्राइड है, आप पास हो गए तो आपकी हैप्पीनेस कितनी है। हम लोग बोलते हैं ना, मैं बता नहीं सकता आपको मैं कितना खुश हूँ, क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि वो चीज काउंट नहीं हो सकती। वी कैन ओनली फील, हम अपने अंदर सिर्फ फील कर सकते हैं। ओके, कंक्रीट नाउन मतलब समथिंग दैट यू कैन बी रिसीव विथ योर फाइव सेंसरी, और अब्स्ट्रैक्ट का बिल्कुल उल्टा है कॉन्क्रीट नाउन। ओके, वो हम अपनी फाइव सेंसेस से पता कर सकते हैं, जैसे एप्पल, लॉयन, आइस, फ्लावर, ये सब चीजें क्या है, हम छू सकते हैं और फिर टेस्ट कर सकते हैं। इसमें से कुछ टेस्ट कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, आंखों से देख सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, जैसे कि फ्लावर, उसको हम देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, खा भी सकते हैं, और अपने स्मेल भी स्किन कर। सॉफ्ट है या हार्ड है, ठीक है। ऐसी चीजों को हम बोलते हैं कंक्रीट नाउन। क्या बोलते हैं? कंक्रीट नाउन। ओके, ये जस्ट अब्स्ट्रैक्ट नाउन का अपोजिट है। उसके एग्जाम्पल, ओके बेबी, कंक्रीट नाउन के मुझे 3 एग्जाम्पल दो बेबी। आपका अनम्यूट करो। यस मैम। कंक्रीट नाउन मैंने अभी एक्सप्लेन किया ना, उसका मुझे 3 एग्जांपल्स दो, कोई भी 3 एग्जांपल दो उसका। मैम कोई आई भी, कैन टेल। वेट बेबी को यस मैम। आप बताओ, कोई ओके भी 3 मैम। एग्जांपल। यस मैम, हो गई है। आपने सुना ध्यान से मैंने क्या एक्सप्लेन किया कंक्रीट नाउन का? क्या यस बोला? मैम। डेफिनेशन, डेफिनेशन बताओ। कंक्रीट नाउन का डेफिनेशन क्या बोला मैंने? मैम आई कैन। वेट सत्यनारायण, कंक्रीट नाउन का डेफिनेशन क्या बोला? मैम, बोलो। मैम एप्पल, बनाना, ओके, बट मैंने उसको एक्सप्लेन क्या किया, क्या बोला, कंक्रीट नाउन कौन सी चीजें होती है? कंक्रीट नाउन,
मैं जब बता रही थी आप छू कर महसूस, यस राइट। छू कर महसूस करते हैं, कर सकते हैं। ओके, अभी और एग्जांपल बोलो आप। हैप एग्जाम्पल में एप्पल, बनाना, नोज, यस आदि। ओके ये ओके ओके। सत्यनारायण, गिव द एग्जांपल ऑफ abstract noun. Okay, ma'am. Ma'am, flowers, animals, Abstract. fruits, vegetables, and etc. Abstract noun. What the definition of abstract noun? Yes, ma'am. Something you cannot perceive with your five senses. Okay, then give me the example. Okay, ma'am. Belief and love, Yes, pride, very good. Himanshu, and it is. Yes, ma'am. give me the example of common noun. Ma'am, common noun. Ma'am, village. Ma'am, village. Cement. Okay. Okay, tell me the definition of common noun का definition बोलो. Ma'am, common noun की वस्तु, common and generally person, place or thing. नॉट स्पेसिफाई, मतलब कॉमन नाउन में चीजों को स्पेसिफाई नहीं किया जाता, ठीक है, उनके बारे में प्रॉपरली नहीं बताया सकता, ठीक है। आई थिंक अभी आपको ये सब पता चल गया, मैं एक बार रिपीट कर सकती हूँ। और हिमांशु, म्यूट योर माइक। ओके, कॉमन नाउन मीन्स नॉट स्पेसिफाई, okay, things which are not specified. Example, city, country. Proper noun, the things which can be properly, okay, and specified, like Satnarayan, baby, Himanshu, and Asmita teacher. Okay. Abstract noun, the noun which cannot be received by sensory organ. Okay. Life, happiness, cryness, sadness. Okay. Concrete noun, the noun which can be received by our five sensory organ, like apple, laptop, okay, mobile, and flower, fruits, and vegetable. Then countable noun can be count. Countable means the thing which can be counted. Count. We can count. Which can be count. Like a number of boys, number of girls, number of apple, number of plates in your house. काउंटेबल मीन्स ऐसी चीजें जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं, ठीक है। कैन बी काउंटेड, जिस चीजों को हम गिन सकते हैं उसको बोलते हैं काउंटेबल नाउन्स। लाइक पेंसिल एंड पेन। आप पेंसिल एंड पेंसिल्स आप पता कर सकते हो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में कितने पेंसिल है काउंट करके। ओके, एप्पल्स, आपके घर में कितने एप्पल्स हैं, ओके, या फिर 1 केजी में कितने एप्पल आएंगे वो पता कर सकते हो। ट्रेन, स्टेशन पे कितनी ट्रेन आ रही है। क्लॉक, घड़ी आपके घर में टोटल कितनी है, ये हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास कितने टोटल मोबाइल है, आपके पास कितने टोटल ये है इरेजर या फिर टॉयज है, खिलौने हैं, ये सब आप काउंट कर सकते हैं। जो चीज भी हम काउंट कर सकते हैं उसको हम काउंटेबल बोलते हैं। ओके, सत्यनारायण, गिव द एग्जांपल ऑफ काउंटेबल नाउन। Okay, ma'am. Ma'am, computer, pencil, pen, geometry box, etc. Okay, okay. Baby, give me the example of countable noun. अनम्यूट करो बेबी पहले। Yes, ma'am. जो गिन
नोट किया हुआ मैम। ओके बोलो। एप्पल्स को गिन सकते हैं। एप्पल्स, पेंसिल बॉक्स, पेंसिल, घड़ी, व्हाइट बोर्ड ओके वेरी और चेयर, etc. yes. Okay. Himanshu, give me the example of countable noun. Ma'am, mobiles, laptop, pencil box, pencil, pen, etc. Okay. And you can also count the number of houses, number of trees. Okay. जिस चीज को हम नंबर में पता कर सकते हैं वो होता है काउंटेबल. ठीक है. जिसका हम नंबर पता कर सकते हैं, काउंट पता कर सकते हैं कि कितना नंबर है वो चीजों का. ठीक है. You can Yes, count your marks also, exam marks. Okay. Number of letter, how many letters you written in your paper, number of questions, number of marks. मार्क्स को हम गिनते हैं ना जब टीचर चेक करके देती है राइट टीचर ने कैलकुलेट किया कि नहीं. 2, 4, 6. ओके. दिस आर ऑल आर काउंटेबल. देन अनकाउंटेबल. अनकाउंटेबल मतलब काउंट के आगे अन लग गया तो अन मतलब नहीं. I can Cannot tell be the counted. uncountable definition. What, Satnarayan? I can tell the uncountable nouns definition. Yes, you can tell. The thing which cannot be Counted. recall uncountable noun. Okay, yes. The thing which cannot be count मतलब ऐसी चीजें जिसे हम गिन ही नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते. मिल्क, आपके घर में दूध है तो आप उसको काउंट कर सकते हो कितना दूध है? No ma'am. No. यू कैन काउंट द ऑयल. आपके घर में जो ऑयल है उसको ऐसे एक एक काउंट कर सकते हो. शुगर. No ma'am. No ma'am. राइस. No ma'am. No ma'am. आप जो खाना आपके प्लेट में है वो टोटल काउंट कर सकते हो कितना खाना लिया है आपने? No ma'am. नो मैम. ठीक है. स्नो. स्नो मतलब बर्फ, वो भी काउंट. स्नो मतलब आइस क्यूब हम काउंट कर सकते हैं, बस स्नो नहीं काउंट कर सकते क्योंकि वो आटे जैसा रहता है. ठीक है. Yes ma'am. देखो अनकाउंटेबल का एग्जाम्पल है मिल्क. मीन्स दूध हम काउंट नहीं कर सकते. म्यूजिक. म्यूजिक हम सुन सकते हैं, फील कर सकते हैं, बट काउंट कर सकते हैं? No ma'am. देन फूड. हमारे प्लेट में कितना खाना है हम नहीं गिन सकते. वाटर नहीं काउंट कर सकते, स्नो नहीं काउंट कर सकते, राइस नहीं काउंट कर सकते. यू कैन काउंट योर हेयर? No ma'am. You can count stars? No, ma'am. So these all are uncountable noun. Okay. Okay ma'am. Okay, Himanshu, give me the example of uncountable noun. Ma'am, a star, hair, milk, rice. Okay. Satnarayan, give me the example of uncountable noun. Yes ma'am. ऐसा Ma'am, एग्जाम्पल rice. मैंने नहीं दिया, वैसा कुछ सोचो मेरे एग्जाम्पल से थोड़ा हटके. Okay ma'am. Ma'am, rice. Yes. Rice leaves. Stars. And Petrol, air. Okay. petrol, diesel, air, etc. Baby, give me the example of uncountable noun. Yes, ma'am. Milk, food, badal, water, oil, hair, etc. Okay, now there is the compound noun. Compound noun means made up of two or more smaller word. Okay, compound noun मतलब जो noun एक या दो अलग अलग वर्ड से मिलके बनता है. जैसे टेक्स्ट, बुक, ब्रेक, फास्ट.
ओके, बाथ रूम, Okay, ma'am. बेड रूम, डाइनिंग रूम, ओके, नोट बुक, लाइक दिस। ये सब चीजें दो अलग अलग है, टेक्स्ट अलग है, बुक अलग है। जब दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया? टेक्स्ट बुक। ठीक है, नोट अलग है, बुक अलग है, नोटबुक। ब्रेक अलग है, फास्ट अलग है, ब्रेकफास्ट। ओके, अंडरस्टैंड कंपाउंड नाउन? Yes, ma'am. Some example of compound noun made up of two or more smaller words: textbook, snowball, seafood, sunflower. Okay, these are the example of compound noun. Okay, baby, give me the example of compound noun. आपके आसपास देखो चीजों को और उसमें से मुझे कंपाउंड नाउन फाइंड आउट करके बताओ। Yes. Ma'am, some Yes. boy, क्या? some boy, or dining table, Very good. football, Very good. or dining table, etc. Okay, Himanshu, give me the some Yes, ma'am. example of compound noun. Ma'am, note copy, Hmm. bat ball, Very good. football, Very etc. good. Okay, Satnarayan, Yes, ma'am. example of countable noun. Fishing rod, newspaper, Very good. kingfisher, Very good. sunflower, Yes. and Okay, tiger rose, etc. where we use chalk. Chalk कहाँ पे use कर Ma'am, सकते हैं? Ma'am, and blackboard. Blackboard. Very good. Okay. Now I think you all understand the compound noun. Okay. Yes, ma'am. ओके, और कंपाउंड नाउन में और क्या क्या चीजें हो सकती है? Ma'am, Something, many things. many Ma'am, things, many things. so many things we use in our daily life. बहुत सारी चीजें होती है जो हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, और उसमें बहुत सारी चीजें हैं जैसे वो कंपाउंड नाउन से ही उनका नाम होता है। ठीक है, मतलब साथ में लेंगे नहीं तो पता नहीं चलेगा किसके बारे में बात करें। लाइक टेक्स्ट बुक, स्नोबॉल, शी फूड एंड सनफ्लावर। ओके, then collective noun. Collective nouns means refer to a group of things as one whole. Collective means collect the things. What do you mean by collect? Collection. Collection. What do you mean by collection in Hindi? Collect and collection. जमा करना. Jama. जमा करना, इकट्ठा करना। ठीक है, जो जो चीजें इकट्ठा होती है उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। क्या बोलते हैं? Collective. जैसे एग्जाम्पल बंच, देखते हो आप लोग, आपकी मम्मी मार्केट से पालक लाती है Yes, ma'am. तो वो बंच में रहता है, मतलब बहुत सारे पालक एक ही साथ बांधे रहते हैं झुंड में, तो उसको हम बोलते हैं बंच ऑफ स्पैचनी। ओके, स्पेनिच मतलब पालक का गुच्छा। देन आपने बुके या ब्यूटिक देखा है, बंच ऑफ फ्लावर्स। Yes, ma'am. देन ऑडियंस, जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे कोई शो हो रहा है या स्कूल का एनुअल डे है तो वहां पे बहुत सारे लोग रहते हैं तो उनको हम बोलते हैं ऑडियंस। ओके, Okay, ma'am. और जैसे फ्लॉक, फ्लॉक मीन्स ग्रुप ऑफ एनिमल और बर्ड। कभी कभी आपने देखा होगा एनिमल और बर्ड जो होते हैं वो ग्रुप में जाते हैं तो उनको बोलते हैं फ्लॉक। ओके, ये सत्यनारायण, हमने ईवीएस में एक लेसन पढ़ा था,
द डे विथ नंदू, वहां पे कुछ वर्ड यूज हुआ था एलिफेंट के ग्रुप के लिए, क्या था वो वर्ड? Group. नो, No, स्टार्टिंग ma'am. Flock. हर्ड, हर्ड, HERD, herds of elephant, Yes, remember? ma'am. Yes, ma'am. एलिफेंट के ग्रुप को क्या बोलते हैं हम? क्या मैम? हर्ड, ठीक है। Ma'am, ग्रुप, ग्रुप मतलब जहाँ पे 4 to 5 पीपल रहते हैं। फैमिली, फैमिली किसको बोलते हैं? जहाँ पे 2 और 3 और 5 मेंबर्स रहते हैं, ठीक है। जो चीजें ग्रुप में रहती है उसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं, ओके। जैसे कि क्लास, तो क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट है। स्कूल, स्कूल में बहुत सारे क्लास है, तो ये सब किसमें आता है? कलेक्टिव नाउन, ओके। क्राउड, व्हाट डू यू मीन बाय क्राउड? ma'am. Bheed. भीड़, तो उसको भी हम कलेक्टिव नाउन में लेते हैं, ओके। अंडरस्टैंड कलेक्टिव नाउन? Yes, ma'am. Okay, ma'am. Okay, Satnarayan, give the example of collective noun. Yes, ma'am. Group of peasants, audience, and group of many animals, etc. Okay, Himanshu, give me the example of collective noun. Ma'am, Himanshu? please wait for some minutes. Ma'am, please wait for some minutes. Okay, okay, no problem. Okay, ma'am. Okay, baby, give the example of collective noun. Group, log, भीड़, etc. Try to give the answer in English, okay? Group, crowd, family, friends, okay? Okay. Himanshu, give me the example of collective noun. Ma'am, collective noun, ma'am. Family group. Ma'am, branches, flock. Okay. Okay, good. Okay, now we see what do you mean by common noun, proper noun, abstract noun, concrete noun, countable noun, uncountable noun, compound noun, collective noun. Okay, in collective noun there is also a team. Team means नंबर ऑफ प्लेयर्स, ओके। जब किसी गेम में 4 से 5 लोग होते हैं तो उसको हम टीम बोलते हैं, ओके। Okay, ma'am. आर्मी, आर्मी इज अ ग्रुप ऑफ शोल्डर्स, ओके। आर्मी is also a collective noun, team is also a collective noun. Then singular noun, what do you mean by single? What do you mean? अकेला. एक या अकेला. Yes, singular noun is same as a single, means refer to one person, one place, one thing or one idea, okay. Means singular मतलब एक, cat, dog, sheep, monkey, hero, etc. Boy, girl, okay. Book, notebook, everything which is only one, we can call them a singular noun, okay. Understand? ma'am. Okay, baby, give Yes, me the ma'am. example of singular noun. Cat, dog, sheep, Yes. भेड़, Okay. goat, Satnarayan? man, etc. Okay. Satnarayan, Yes, give the ma'am. example of singular noun. Okay, ma'am. Books, paper, books, paper, book, paper, and tree, pen, box,
and speaker, etc. Okay, Himanshu, give me the example of singular noun. Ma'am, book, paper, newspaper, wood, plant, etc. Okay, these are the example of singular noun. In singular noun, we also take an example of earth because it is only one. We can take an example of sun, moon. Okay, it is only one. Taj Mahal. Okay, India, like this. Okay, जो चीज सिर्फ एक ही है उनको हम ऑलवेज सिंगुलर नाउन में काउंट करेंगे. ओके, समझ में आया? जो चीज हमारे पास दुनिया में सिर्फ एक ही है उसको हमेशा हम सिंगुलर नाउन में ही बोलेंगे. ओके, Okay, ma'am. देन प्लूरल नाउन, इट्स जस्ट अपोजिट ऑफ सिंगुलर नाउन. मतलब सिंगुलर नाउन मतलब एक, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा, रिफर टू मोर देन वन प्लेस, things or idea. Dogs, cats, ships, babies, books, boys, girls, teachers, like this. Okay, this is the plural noun, means more than one. Sometime we put after s, जब भी हम कोई नाम लिखेंगे उसके पीछे s लगा देंगे तो सिंगुलर से प्लूरल हो जाएगा. ओके, Okay, ma'am. okay, Satnarayan, give the example of plural noun. Okay, ma'am. Ma'am, computer sleeps, computer leaves, books, papers, newspapers, mouses, and elephants, etc. Okay, very good. Himanshu, can you give me the example of plural nouns? Yes, ma'am. Plants, trees, newspapers, papers, copy, oxygen, etc. Okay, baby, can you give me the example of plural noun? Yes, ma'am. Yes. Dog, cat, wood, newspapers, books, paints. Okay. Okay, baby, three of you, very good. Okay, give all the answers very nice. Okay, now in plural noun, something we add. Stars. Okay. Hairs, ears, eyes. Because these things are always more than one. कभी हमारी वन आई होती है क्या? No, ma'am. कभी वन के हेयर वन होते हैं? नो. हेयर्स भी हमारे टू होते हैं. हेयर्स भी हमारे, फिंगर्स को भी हम हमेशा एस लगा के बोलते हैं. ठीक है, सिर्फ एक फिंगर को बोलना होगा तो फिंगर्स. शूज क्योंकि हमेशा जो चीज पेयर में रहती है उसके आगे हम एस लगाते हैं. ग्रेप्स. ठीक है, जो चीजें Vegetables. जो चीजें हमेशा ग्रुप्स में रहती है उसके आगे हम हमेशा एस लगाते हैं. या फिर पेयर्स में, पेयर मतलब किसी भी दो चीजों का जोड़ा. ठीक है, जैसे शूज हम कभी मार्केट से एक ही खरीद के लाते हैं क्या? No, ma'am. हमेशा दोनों लाते हैं. सॉक्स भी दोनों लाते हैं. ठीक है, तो वो चीजें हमेशा पेयर में रहती है तो वो प्लूरल होगा. ठीक है, एक बार मैं फिर से शॉर्टकट में ये टाइप्स ऑफ नाउन आपको एक्सप्लेन करती हूँ. ओके, कॉमन नाउन मीन्स नॉन स्पेसिफाइड थिंग्स. प्रॉपर नाउन मीन्स स्पेसिफाई और प्रॉपरली गिव द नेम ऑफ द नाउन. Abstract means the cannot be perceived by sensory organ. Concrete noun means the things which can be pre-received by our five sensory organ. Countable means the thing which can be counted. Uncountable noun means the thing we cannot be counted. Compound noun means the noun which made up of two or two smaller or two more words. Okay. Collective noun means the things which can be in a group or which can be collected. Singular noun means only a single thing, and plural noun means the thing which is more than one. Okay. One. Okay. I give you
in your scientific study. Okay, on this app I give you some questions related to this types of noun. Okay, you have to check your homework and complete your homework. Okay. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, all of you understand the types of noun? Yes, ma'am. If you have any doubt, then you can ask me now. Okay? Okay, ma'am. Any doubt? No, ma'am. No, ma'am. Okay. Now we can stop our class here. Okay? Okay, ma'am. Okay, Bye. ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye bye.